دعا کے علاوہ کیا بات چیت ہوئی ہے جب سے وہ واپس ہیں پہلی دفعہ آپ کے پاس آئے؟ تو میاں صاحب تشریف لائے تھے, دعا کے لیے بھی آئے تھے. ہمارے جماعت کے بھی کافی حادثات ہوئے, ان کے لیے بھی وہ دعا کرنے کے لیے آئے تھے. کیونکہ میڈیا سے گفتگو کرنے کا کوئی شیڈول نہیں تھا, تو اس وجہ سے آپ سے ذرا تھوڑی اجرت میں باتیں ہو رہی ہیں. تو یقیناً ہم نے مل کر ایک لمبی جدوجہد کی ہے. ہم حکومت کے وقت بھی ان کے ساتھ, تو ہم حکومت میں بھی اکٹھے رہے ہیں اور پالیسیاں بھی اس وقت ہم مل کر بناتے تھے. پھر پچھلی جو ناجائز حکومت تھی اس کے خلاف تحریک میں بھی ہم اکٹھے رہے. میاں صاحب جیل میں رہے, پھر ملک سے باہر رہے, اور آج وہ تشریف لائے ہیں. ہمارے لیے ان کا پاکستان میں آنا بھی آمدید کہتے ہیں. ہمارے گھر تشریف لائے ہیں, اس پر بھی ہمارے دل ان کے لیے پرشراہ ہیں. تو ایک مل کر جدوجہد کی ہے, اور یہ ہم نے آج طے کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں بھی ہم مل کر چلنا چاہیں گے, پورے ہم آہنگی کے ساتھ مل کر چلنا چاہیں گے. اور جو انتخابی مراحل ہیں ان کو بھی ہم باہمی مفاہمت کے ساتھ اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ قریب تر رہتے ہوئے. باقی پارٹیوں سے بھی ہمارے روابط رہیں گے. کس طرح ہم انتخابات کے مرحلے کو جو ماحول پی ڈی ایم میں بنا تھا, ایک ہم آہنگی کا, ایک یکجہتی کا, اس کا ہمیں تمام پارٹیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جس پارٹی کا جہاں جہاں پر ہجوم ہے اس کا حق بنتا ہے, کسی کو اس کے پارٹی کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ملک کے خلاف سازشیں ابھی تک موجود ہیں, فتنے ابھی تک موجود ہیں, اور پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکے اس کے لیے سب نے سوچنا ہوگا. باہمی اختلاف اور اپنی قوت کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا, توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف صرف کرنا, یہ شاید نہ ملک کے لیے بہتر ہو اور نہ ہم سب کے لیے بہتر ہو. تو اس پر ہم نے ایک اتفاق رائے کیا ہے, اور مل کر آگے چلنے پر ہم نے. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ مل کر چلنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, انتخابی اتحاد ہوگی؟ جو آپ بہتر تعبیر کر سکتے ہیں وہی. مولانا صاحب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی, کیونکہ وہ پی ڈی ایم کو تو چھوڑ چکی تھی اس وقت. ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہمارے کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو بہت ٹھیک, نہیں بن جاتے تب بھی ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے. مولانا صاحب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب نتائج پہلے سے طے شدہ ہوں تو پھر ان انتخابات کا فائدہ کیا؟ دیکھیے یہ باتیں چھوڑیں, ان کو پتہ نہیں ہے. ماضی میں ہمیں بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سنا, اور کتنی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں کہ اگر میری اکثریت نہ آئی تو ہم الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ باتیں ہم سب سن چکے ہیں بہت سے لوگوں سے. اب اس کو میرے خیال میں تاریخ کے حوالے کر دینا چاہیے, اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اب جو بزرگ ہے وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں, کیا کہیں گے؟ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے, اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے ہیں. اور والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے. وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. میرے خیال میں وہاں مجھے تھوڑی سی تبصرہ کرنے کا حق تو نہیں ہے, لیکن بہرحال بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے آخری جلسے میں کہا کہ اگر ہمیں پارلیمان سے باہر کیا گیا تو اس کے نتائج ہوں گے, تو یہ آپ خطرہ عمران خان صاحب سے محسوس کر رہے ہیں یا کچھ طاقت ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں نے ایک بات کہی ہے, اسی تک سمجھے آپ, اور ہر ایک کو مخاطب کر رہا ہوں. جو ایسی حرکت کرے گا انشاءاللہ اس ملک میں سکون نہیں آئے گا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک الیکشن تسلیم نہیں ہوا, متنازع ہو گیا. اب پاکستان کیا اس کا متحمل ہے کہ اگلا الیکشن متنازع ہو جائے؟ تو ہم اگلے الیکشن کو متنازع نہیں ہونے دیں. مولانا صاحب آپ نے اپنی جماعت کے بچوں کو نہ تو کبھی پرائیویٹ جہاد میں استعمال ہونے دیا, نہ ہی انہیں کبھی سیکٹیرین وائلنس کی آگ میں جھونکا.
लेकिन उसके बावजूद जो आपकी जमात के ऊपर ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये क्या आपको इलेक्शन में पूरी तरह से बाहर ना निकलने देने की कोई साजिश है या इसके क्या मकासद हैं? देखिए, मैंने ये बातें कही हैं और जब मैंने ये बातें कही तो आप हजरात ने मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकाला कि शायद हम इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं। हालांकि ये बात नहीं थी। मेरे ख्याल में यहाँ जो लोग रहते हैं या लाहौर में रहते हैं, यहाँ ज़रा पुरसुकून माहौल है। लेकिन अगर आप हमारे KP में आ जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, तो वहाँ आपको बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आएगी। और कोई उम्मीदवार भी, यानी मेरे मुखालिफ उम्मीदवार, वो भी मुझे मिले हैं और वो भी मुझे कहते हैं कि कंपेन तो हम नहीं चला सकेंगे। तो अब हमने अपनी बात कह दी है। इलेक्शन कमीशन तक हमारा पैगाम पहुंच गया है, अदालत तक हमारा पैगाम पहुंच गया है, सियासी क़ुव्वतों तक, कायदीन तक हमारा पैगाम पहुंच गया है। बाकी जो फैसला उन्होंने करना है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे और हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। मौलाना साहब, आपने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरा मुखालिफ अगर जेल में हो और मैं आज़ादी से इलेक्शन लड़ूं, मुझे पसंद नहीं। तो इस वक्त भी PTI लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ बयानात दे रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो क्या इस तरह कोई मेरे गुफ्तगू का मतलब कानून को हाथ में लेना नहीं है। ये मेरे जज्बात हो सकते हैं, लेकिन इसका ये माने मैं कानून को भी हाथ में ले रहा हूँ कि कानून खामोश हो जाए और वो किसी का मुहासबा ना करे। आपने कहा कि साजिशें हो रही हैं, फितना फसाद अब भी है, वो साजिशें अंदर से हो रही हैं, बाहर से हो रही है, कौन कर रहा है? आप भी मेरे ख्याल में बाल का खाल उतारने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अगर किसी की निशानदेही करते हैं तो पहले तो हम कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं वो अपनी जगह पर कायम है। मज़ीद हम इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि तमाम इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें, अपने फ़राइज़ संभालें, मुल्क को अमन व अमान दें, मुल्क को अच्छी मईशत दें, अच्छा नज़्म व नस्क़ को। तो ये हमारे अहदाफ हैं और इस अहदाफ को लेकर हम मौलाना क्या खैबर क्लियर है कि इलेक्शन हो रहे हैं या अभी भी कुछ शबूत शबात है? अगर नहीं भी हो रहे तो मैं यूँ समझता हूँ कि हो रहे हैं। मौलाना साहब, खैबर जिस तरह पिछले दिनों आपकी एक स्पीच थी कि जी अगर ऐसा किया गया और फिर सूबे की देने की कोशिश की गई तो हम मज़ाक़त करेंगे, वही पिछले सवाल के तराज़ में कोई ऐसी कहीं से आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, हज़रत, ये एहतिमालात हमारे मुल्क में हर वक्त मौजूद रहते हैं और हमें इस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह रखनी होती है। तो इस बात दफ़ा हमें एक बात बार बार कहनी पड़ जाती है तो आपके लिए कई सवालात जो है वो तश्कील दे देता है, लेकिन ये आम मुल्क के लिए हर वक्त हमारी एक बात है। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि अमरीकी सफ़ीर ने पिछले दिनों मुलाकातें की हैं मुख्तलिफ जगहों पर, क्या कहेंगे? एक तरफ आप ही सियासी जमातें कहती है कि किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात की, आजाद से भी मुलाकात की है, तो जिक्र हुआ? देखिए, अगर नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर कोई सफ़ीर मुलाकात करता है, हम लोग किसी मुल्क के सफ़ीर के साथ मुलाकात से इस्कार नहीं करते और इलेक्शन के दिनों में भी सफ़रा मुलाकातें करते हैं मुल्क का हालात। लेकिन अमरीकी सफ़ीर जब मिलता है तो उसके कुछ और माने लिए जाते हैं, जैसे कि एक आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखता है और उसे मुदाखलत के इशारात दे रहा है, तो इसका हमने हमेशा मुखालफत किया। आप समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि मुतनाज़ा इलेक्शन, आप समझते हैं कि PTI को निकाल कर जो इलेक्शन होंगे वो मुतनाज़ा नहीं होंगे? PTI मेरी नज़र में सिर्फ से पार्टी नहीं है, न वो पाकिस्तान की पार्टी है, न वो पाकिस्तान से मुखलिस है। उनका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था, उसका एजेंडा कश्मीर को बेचना था, उसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम कराना था, उसका एजेंडा कादियानियों को दोबारा मुसलमान करार दिलाना था। ये सारे एजेंडे उनके मौजूद थे जी। तो हम इस हवाले से ऐसे नज़रियात रखने वाले को पाकिस्तान की जमात नहीं तस्वर करते। पाकिस्तान की जमात शुरू नहीं करते। दावत देता हूँ कि वो इस फितने से महफूज हो जाएँ। मैं खुशामदीद कहता हूँ। मुझे उनके साथ दर्द दिल है, मुझे दुख है कि मेरी नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जा रही है और क्यों बात को नहीं समझ रही। मौलाना साहब, कल रात हमने देखा कि इमरान खान की अहलिया के हवाले से भी ऐसे बयान। मौलाना साहब, मैं इधर 6 में रहती हूँ, 6 नंबर और आपसे मिलना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा ना। तो मेरा आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने पहले भी इतनी जमाबंदी से मुल्क को संभाला है, किसी चीज़ से आप नहीं डरे, बड़े से बड़े थ्रेट से आप नहीं डरे, तो हम चाहते हैं कि इस नई नस्ल जो बिल्कुल बर्बादी की तरफ चली गई 4 सालों, आप उसको दोबारा से रिऑर्गेनाइज करें। अल्लाह ताला उनकी इस्लाह करे। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी उनके साथ हमदर्दी है। नौजवानों के साथ कारकुन मुखलिस होता है, वो एक नेकनीयती के साथ पुरुम्मीद होकर किसी से वाबस्ता होता है।
जो ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने ख्याल में खुलूस से भरा होता है। खुदा करे उनका खुलूस जो है वो एक मुस्बत जहत पर मुंतकिल हो जाए तो हम खुश होंगे। नहीं भाई, अभी भी वो सही रास्ते पे अल्लाह खैर अभी भी करे, अल्लाह खैर करे। को आगे ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की जो सियासी हिमायत है फ़लस्तीनियों की, जिस तरह स्टेट की हिमायत है फ़लस्तीनियों के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्टेट का मौक़िफ़ सामने आया है, मैं ख़ुद कतर गया हूँ और मैंने वहाँ की क़यादत से बात की है। वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहती भी हैं और पाकिस्तान को अपने लिए बिल्कुल आखिरी उम्मीद तस्वुर करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें दुनिया में ये एतमाद बरकरार रखना होगा। ये जो रतमंदाना मौक़िफ़ जो आवाम का, स्टेट का, हुकूमत का यकसा और एक ही जिहत पर है, इसको हम मुल्क के लिए एक बेहतर और इस्लाम के हवाले से एक मुसलमान की हैसियत से जिसमें जो गज़ा के मुसलमानों पर सहूलियत की तरफ से मज़ालिम हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। हज़ारों बच्चे इस वक्त जो नवमौलूद बच्चे थे वो इस वक्त बग़ैर किसी वारिस के पड़े हुए हैं और माएँ जो हैं, बहनें, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। 11-12 हज़ार से लेकर कोई 14 हज़ार तक ख़वातीन, बच्चे, बेगुनाह शहरी और जो मलबों के नीचे है वो इसके अलावा है। तो उनके जो है पानी पीने के ज़खायर तबाह हो गए हैं, उनके स्कूलों पे और उनके अस्पतालों पे, उनके मार्केटों पे खाने पीने के अशिया। ऐसे वक्त में मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। वहाँ पर ग़िज़ा की तस्दीक शुरू हो जानी चाहिए। सरहदात इसलिए खोल देने चाहिए वहाँ के लोगों तक खाने पीने की चीज़ें और ग़िज़ा पहुँच सके। मौलाना साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से एक मुतनाज़ा बयान आया फ़लस्तीन के हवाले से, क्या कहेंगे? तो अगर सदर मुमलिकत की तरफ से आया है तो यही तो हम रोना रो रहे हैं, वही तो हम रोना रो रहे हैं। ये ज़हनियत जो पाकिस्तान के अंदर 4-5 साल से या 10 साल से आई हुई है, ये वो एजेंडा है जिसका इज़हार किसी न किसी जिहत में हो जाता है। तो इस हवाले से हम एक फ़लस्तीन की बात करते हैं। ये जो 2 स्टेट का तस्वुर है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए और हमें 75 साल की फ़लस्तीनी की कुर्बानियों को सामने रखना चाहिए, जिस रियासत का कोई तस्वुर नहीं था, 48 में बना है, जिसको कायद आज़म ने नाजायज़ बच्चा कहा है, जिसको मुआहिदा दारफोर के तहत वजूद में लाया गया, बरतानिया की वजह से लाया गया। आज अमेरिका उसकी पुष्पनाही कर रहा है, डायरेक्ट उसकी दिफा के लिए पहुंच गया है, यूरोप पहुंच गया है। इस्लामी दुनिया को भी खुलकर उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और हम अगले जुमे को फिर यौम फ़लस्तीन बनाएंगे, पूरे मुल्क के अवाम से दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि वो जुमे के दिन इज्तिमाआत में भी अइम्मा किराम और खुतबा भी और पब्लिक भी सड़कों पर आकर उनके साथ यकजहती का इज़हार करें।